صاحبہ کے ایک شعر کے ساتھ، یہ تیری کتاب میں ایک ورق جو سادہ ہے، تیری کتاب میں جو ایک ورق سادہ ہے، میرا وجود ہے اتنا تیرے افسانے۔ جناب پرویز مانوس صاحب، عرض کرتا چلوں کہ پرویز مانوس جو کہ محکمہ تعلیم میں بحیثیت استاد کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وادی کشمیر کے ادبی افق پر ایک درخشاں ستارہ ہے۔ ان کے حق میں اب تک تقریباً 26 کتابیں ہیں، یعنی کہ 26 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، جن میں 5 شعری مجموعے ان کے شامل ہیں، 4 افسانوی مجموعے شامل ہیں، 3 ناول انہوں نے لکھے ہیں، 2 ڈراموں کی باضابطہ کتاب ان کی منزل عام پر آئی ہے، اور ترجمے کی 12 کتابیں موجود ہیں۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری گزارش رہے گی چونکہ یہ تقریب ندائے کشمیر کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اور ندائے کشمیر سے وابستہ ہیں ہمارے پاس جناب معراج الدین صاحب جو یہاں پہ تشریف فرمائیں، جو ان کے چیف ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے خونخوار صحافی ہیں۔ میری ان سے گزارش رہے گی کہ وہ رسمی طور پر سبھی مہمانوں کا استقبال کریں۔ میں آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ سب یہاں پہ تشریف فرما ہوئی، اور خاص کر ڈاکٹر دلشان اندرابی صاحبہ چیئر پرسن وقبول، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی ایک کتاب ریلیز کرنے کی، اس کے لیے میں ان سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ میں ندائے کشمیر کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ندائے کشمیر 24 پیجز میں پبلش ہوتا ہے، جس میں 3 لینگویج آتی ہے، اردو، کشمیری اور انگریزی، اور اس میں تقریباً 16 پیج جو ہے ادب پر ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ نئے ابھرنے والے یا ہمارے سینئر رتبہ ان کو اس میں اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ادب کو آگے بڑھائیں۔ بس آپ سب کا شکریہ، چونکہ میڈم جی بہت دور سے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ سب کا استقبال اور دل سے شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت ساری پہاڑی میں ہے اور بہت سارے اردو میں۔ پہاڑی میں انہوں نے جو گرام قدر خدمات انجام دی، ان میں شاعری تو ہے ہی، افسانہ میں انہوں نے بہت خوب لکھا اور لکھ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ قلم کا رخ پہاڑی زبان کی طرف پھیرا، تو دیکھتے ہی دیکھتے مانوس پہاڑی ادبی کاروان میں ایک نمایاں مسافر کی حیثیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت محترمہ ہماری پیاری بہن اور ہماری وادی کی مشہور معروف شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، بہت کچھ ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ کیا کہیں ہم، چھوٹی میں بڑی بات، اور اس محفل میں معزز افراد بیٹھے ہیں، سب کو ہمارا سلام۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پرویز مانوس صاحب کے بارے میں کچھ نہیں، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ 26 کتابوں کے مصنف ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا زود نویس بھی ہیں، اشعار نویس بھی ہیں۔ میں اس بارے میں نہیں کہوں گا، لیکن میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس کو کہا تھا کہ ہندوستان کو اگر تہذیبوں کا عجائب خانہ بھی کہا جائے تو کم نہیں ہے۔ ان کے مطابق عربی کالوی کا کہنا ہے کہ there are 133 cultural zones and 4625 communities، جو ہندوستان کو ایک مہان ملک اور عظیم ملک بنانے میں پیش ہے۔ ہمارے جموں کشمیر میں پہاڑی کلچر جو ہے، محترمہ ڈاکٹر صاحبہ و ادیب صاحبہ، صحافی حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا پہاڑی میں بات کریں، تو مجھے میرے نانا جی کے والد صاحب مولوی اس مجلس کی صدر ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ اور ماجد جہانگیر صاحب، میرے بہت سارے چاہنے والے جن کے ساتھ بہت ایک دیر سے رشتہ جڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔
डॉक्टर फारूक अनवर मिर्ज़ा साहब हैं मेरे साथ, तैयब नईम साहब हैं, बाकी जो पहाड़ी के अलावा जैसे हैं हमारे यहाँ कामिल साहब के फर्जंद हैं, यहाँ पर शकील रहमान साहब हैं, अब्दुल मजीद बदरवाई साहब हैं, ये बदरवा से हैं और लिखते हैं, और यूसुफ शाहीन साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब हैं, महराज फराज साहब का पहले ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, पीछे काफ़ी देर से पीछे लगे हुए थे कि किताब इजरा करवाएंगे, और बाकी दोस्त हैं यहाँ पर, अजीज़ हैं मेरे, ज़ुबैर कुरैशी हैं, सोहेल सालिम वगैरह हैं यहाँ पर। दरअसल जैसे माजिद जावेद साहब ने अभी कहा कि ऐसी चीज़ें लिखने के लिए इनको अपने आप को कैफियत तारी करनी पड़ती है, और ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपको दोनों ज़बानों को पूरा अबूर हासिल हो, जो सोर्स लैंग्वेज है वो भी, और टारगेट लैंग्वेज है वो भी, दोनों पर आपको मुकम्मल अबूर होना चाहिए। ये मुझे एक ट्रांसलेशन के वक्त आज से 25 साल पहले ज़फ़र इकबाल मनहाज साहब ने सिखाई थी, जब उन्होंने एक मकाला मुझे दिया था तारीख़ हसन का, जो मैंने किया था, तो मैं यहाँ आया गर्मी में तो अपने पास बिठाया और दिखाया कि ये नहीं होता, ये ऐसी होती है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, पहले ये पढ़ कर अपने आप को तारीख करो, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैंने जो काम भी किया, तो इसके अलावा मैंने कश्मीरी ज़बान के 90 अफसाने जो हैं, सांझा दर्द, सांझी सोच और सांझे बोल, 30 अफसाने उसमें मैंने ट्रांसलेट किए हैं, वो मैंने खुद छापी है किताबें पुष्प और पहाड़ी बोर्ड ने। बैठे हुए आज के हम कहेंगे सबसे आला हमारे भाई और राइटर्स, हमारा परवेज़ मानू साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के CEO डॉक्टर सैयद माजिद जहांगीर साहब, यहाँ पे शाहीन साहब तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब तशरीफ़ फरमा है, ज़ुबैर साहब जिस तरह से कंपेयरिंग और आवाज़, तलफ़ुज़ और चार चांद लगाते हैं इसी जवानी में, और हुस्न आवाज़ बख्शती है हर एक कली को, वैसे अपने अल्फाजों को तराश के हमारे सामने रखते हैं, वो तशरीफ़ फरमा। ऐसे ही डॉक्टर साहब जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे याद आता है, कभी कभी फेसबुक पे मुझे बड़ा एनकरेज करते थे, लेकिन आजकल वो कलिमात हमारे नसीब में नहीं होते हैं, वो अलग बात है। अरशद बैठा हुआ है, अरशद साहब, 2 अरशद यहाँ पे बैठे हैं, महराज साहब तशरीफ़ फरमा है, अनवर साहब तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर साहब अभी उन्होंने बहुत अच्छे कलिमात यहाँ पे पढ़े। 2 लोगों के मैं नाम नहीं जानती हूँ, चेहरे पहचानती हूँ। अंग्रेज जैसा भाई बैठा हुआ है अनवर साहब के बगल में, नाम से अयूब साहब जी। तो आप सब यहाँ पे तशरीफ, और शबरेज सामने बैठा है, उबैद सामने बैठा है, मेरे सारे जर्नलिस्ट भाई, मुदस्सिर, सबको मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाकई में मेरे लिए तारीखी लम्हात है। आज इस ऑफिस में, जो पहले वक्फ बोर्ड के पास ऑफिस नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑफिस है और एक छोटा मोटा हॉल है, जहाँ पे अदबी निशस्त का ये पहला आगाज है, और बुक से ही आगाज हुआ। शेखुल आलम अलमदारे कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के किताब से, उस मजमूए से जिसका हम मानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर पे एक रहमत का साया है, अलमदारे कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का, उनके कलाम से आज इस हाल में वो किताब की रूनमाई हुई, हमारे लिए बाइस फख्र है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी, आप यहाँ पे तशरीफ आवर हुए। मेरे लिए मानू साहब नए नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा एक छोटा सा अफसाना हकीम मंजूर साहब मरहूम के अखबार में वो खबरों नजर में शाया हुआ था, तो मैं तब कॉलेज फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी।
तब ये ढूंढने आए और फिर इन्होंने अपनी बेटी का नाम भी दरख्शां रखा, ये इन्होंने बताया नहीं। तो मैंने इनसे पूछा, कहा अब दरख्शां मेरे सामने रहेगी, आप मेरी बहन हो, वो मेरी बेटी है, इससे बढ़कर रिश्ता क्या हो सकता है। और इन्होंने हमेशा एनकरेज किया, और जो इनकी जो तर्ज अमल भी है और जो इनकी शायरी है, उससे बढ़कर इनमें एक इंसान बसता है। हमेशा एक अदब में जब मैं शामिल हुई अदीबों में, मैंने मैदान तंग देखा। जब मैं अदीबों में आई तब मैंने मैदान तंग देखा। उसमें भी कुछ लोग ऐसे देखे जिनका दामन वसी था, जिनका दामन वसी था, और वसी दामन के उस मैदान में परवेज मानूस खुद में ही एक मैदान है, जिनकी छत्र छाया में, मोहब्बत में, वो प्यार जो मिला एक भाई के तरीके से, वो आज भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि नहीं चाहिए था मुझे कहना, क्योंकि मैं खुद इस तबके से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन जब जिस मैदान में इंसान कदम रखता है, अगर वहां तंग दामनी का एहसास रहता है, घुटन सी महसूस रहती है, भले ही अदीबों के हाथ में कलम होता है, वो अपनी घुटन कलम की नोक से लिख लेते हैं, लेकिन वो घुटन उनमें महसूस हमेशा रहती है। तब भी वो तर करते हैं वो कागज, तभी वो सफ़े करतास पे वो मोती बिखेर देते हैं, जब उनकी घुटन अंदर से खलिश में बदल जाती है या प्यार में बदल जाती है। दोनों चीजें। यही मैंने देखा कि मैदाने जो अदीब है उस पे क्रिकेट नहीं खेली जा सकती है। वो पिच इतनी सख्त होती है कि या तो वो रन आउट हो जाता है बंदा, या बीच में ही लुढ़क जाता है। क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में इस मैदान में कदम रखा, लेकिन अकेली थी उस टाइम पे, क्योंकि हालात कश्मीर के उस कदर साजगार नहीं थे। अकेली होती थी मैं इस मैदान में। अनवर साहब जानते हैं, डॉक्टर साहब, तब मैं जो ही मैंने पहला कदम भी रखा वो भी कल्चरल अकादमी में रखा, तभी मैं बहुत सख्त इस मैदान को जानती हूँ, जिसमें दरारें बहुत हैं। जितना बाहर से शानदार है उतना ही अंदर से चूर चूर है ये मैदान। सख्त कहने में मैं माहिर हूँ, और अच्छा लगता है कि सच का एतराफ करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि राइटर हमेशा सच कहे तो वो अच्छा रहता है। इसीलिए मैं परवेज मानूस साहब से मानूस होकर ये कहना चाहूंगी कि 26 किताबें, अफसाना लिखना, हर एक लैंग्वेज पे अबूर होना, ये कोई कम बात नहीं होती है। हमें लगता है कि शायर, अदीब, तनकीद, निगार लिखता तो है, अच्छा हम भी लिख सकते हैं, अच्छा हम भी लिख सकते हैं, मैं क्या छुई टूटा करा, अब क्या ये उतना करता है। लेकिन हर एक लफ्ज में लहू टपकता है, जिगर से लहू टपकता है तो बन जाता है। लहू टपकता है, और जब वो असर भी रखे, वो अल्फाज, वो अफसाना, वो कहानी, वो शायरी, तब मानिए अपने आप में ही एक तारीख लिखी जाती है। और तारीखें यूं नहीं लिखी जाती है, किसी नाम के साथ मानूस या दरख्शां नहीं लगाया जा सकता है। जब